السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں مہمان شخصیت کون ہیں ان کا تعارف بعد میں، پہلے آپ سے درخواست یہ کرنی تھی کہ کسوٹی ڈیجیٹل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں آپ ہمارے انٹرویوز اور مختلف پروگرامز آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں خیبر پختونخوا آئی ٹی اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ایم ڈی جناب صاحبزادہ علی محمود، اور آپ کا تعارف میں اگر تھوڑا سا اور کرواؤں تو آپ کے پی ایزمیک میں بھی رہے، آپ کی بڑی خدمات ہیں اس صوبے کے لیے، آپ نے خاص طور پہ صنعتوں کی ترقی کے حوالے سے جو خدمات انجام دی، یقینی طور پہ اہل خیبر پختونخوا کو ان پر فخر ہے۔ آئی ٹی بورڈ میں کیسے آنا ہوا اور پھر آئی ٹی بورڈ کی آج کل کارکردگی کیا ہے؟ بہت شکریہ جی مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک کافی عرصے تک تو میں کے پی ایزمیک میں تھا اور انڈسٹریل سیکٹر میں مختلف ڈیجیٹل انیشیٹیوز اور انڈسٹریل سیکٹر کی ترقی کے لیے کافی کام جو ہے اس میں خوشی ہے کہ کچھ حد تک جو ہے کنٹریبیوشن کی، اور اس کے بعد پھر چونکہ میں ڈیجیٹلائزیشن کا مجھے شوق تھا، میں نے خیبر پختونخوا کی جو ڈیجیٹل پالیسی ہے 2018 اس میں بھی کنٹریبیوٹ کیا تھا۔ تو ایک روڈ میپ پہلے سے ذہن میں تھا کہ اس صوبے کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہمارا پبلک سیکٹر ہے اس کی کارکردگی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کا بھی ایک روڈ میپ تھا۔ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو ہماری آئی ٹی کی کمپنیز ہیں، ان کو کیسے اپلفٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا سب سے جو ایک بہت ہمارا اہم اثاثہ ہے جو ہمارے نوجوان ہیں، اگر آپ خیبر پختونخوا کے انڈیکیٹرز دیکھیں تو انڈر دا ایج آف 30 سال سے کم جو ہمارے نوجوان ہیں تقریباً 60% سے زیادہ ہیں۔ تو ہماری گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے، یا ایون ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان سب کو نوکریاں دے سکیں۔ تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو اگر ہم ڈیجیٹل سکلز مہیا کریں، ان کو انگیج کریں اور ان کو ایسی سکلز دیں تو وہ امپلائمنٹ بھی اپنے لیے ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آن لائن فری لانس مارکیٹ ہے اس سے وہ کافی کمائی کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے کافی اس طرح کے پروگرام شروع بھی کیے جس کا کافی اچھا امپیکٹ ہوا۔ خیبر پختونخوا آئی ٹی بورڈ 2011 میں بنا تھا ایک ایکٹ کے تھرو، اور اس کے پاس شروع میں مینڈیٹ تھا صرف پرائیویٹ سیکٹر کو اپلفٹ کرنے کے لیے۔ پھر 2018 میں ایک آئی ٹی ڈائریکٹریٹ ہوتا تھا، اس کو اس میں ضم کر کے اس کا مینڈیٹ بھی خیبر پختونخوا آئی ٹی بورڈ کو مل گیا، اور 2018 کے بعد آئی ٹی بورڈ جو ہے اب وہ حکومتی کارکردگی جو ہے، جو ڈیجیٹل گورننس ہے اور پبلک سیکٹر میں انٹرونشن کا، وہ بھی اس کو مینڈیٹ مل گیا۔ تو اب ہمارے پاس جتنے پروجیکٹس ہوتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کا مینڈیٹ بھی ہے، اس میں بھی وہاں پہ بھی ہم پروجیکٹس کرتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے اس میں بھی پروجیکٹس ہیں، اور اس کے علاوہ ہم انفراسٹرکچر بیسڈ بھی کچھ ہمارے ابھی پروجیکٹس اپروو ہوئے ہیں، جس میں ایک ہے پاکستان ڈیجیٹل سٹی ہری پور۔ تقریباً 2-2.5 سال سے یہ پروجیکٹ چل رہا تھا لیکن اپروو نہیں ہوا تھا، ابھی کچھ عرصے پہلے پی این ڈی نے اس کی اپروول دے دی ہے۔ ہمارا ارادہ ہے کہ اس کو ایک اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا اسٹیٹس مل جائے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، تاکہ اس کو کچھ انسینٹیوز مل جائیں۔ اس کے علاوہ پھر مردان میں ہمارا ایک ارادہ ہے کہ اسپیشل ٹیکنالوجی زون بنائیں اسٹیٹ آف دا آرٹ، اس کے لیے بھی ہمیں زمین مل گئی ہے، اور ہم اس کی فیزیبلٹی پہ ابھی کام شروع کریں گے، اور اس کے بعد وہاں پہ بھی انشاءاللہ اس کی ڈیولپمنٹ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے حکومت کے منصوبوں کی بات کی، وہ تو بڑی حد تک کامیاب ہیں، وہ دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ نوجوانوں کو کس طرح سے آپ راغب کرتے ہیں اور ان کی اسکل ڈیولپمنٹ میں کیا رول کس طرح سے پلے کرتا ہے یہ ادارہ؟ دیکھیں، ایک تو ان کو بھی اس چیز کا، نوجوانوں کے بھی احساس ہے کہ ہماری جاب مارکیٹ جو ہے وہ کس طرح کی ہے، بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہے کیونکہ جابس کم ہیں، لوگ امیدوار زیادہ ہیں، اور ان امپلائمنٹ بھی جو ہے ہر جگہ ہوتی ہے، ہمارے ملک میں بھی ہے۔ اب ان کو تو اس چیز کا پتہ ہے، لیکن ان کے لیے سب سے بہترین موقع کیا ہو سکتا ہے، یا ان کے لیے سب سے بہترین آپشن کیا ہو سکتا ہے تاکہ وہ اس قابل ہوں کہ اگر ان کو نوکری ملتی ہے یا نہیں ملتی، وہ اپنا کام بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اپنا ایک ڈیجیٹل انٹرپرائز آج کل سیٹ اپ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے اگر ان کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا ہے۔ تو
एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो भी हम देते हैं, हमारे इंक्यूबेटर नेटवर्क है दुर्शल के नाम से। तो हम वहाँ पे ऐसे लोग जिनके पास, ऐसे नौजवान जिनके पास अपना कोई आइडिया होता है लेकिन उनको थोड़ी सी हैंड होल्डिंग की, सपोर्ट की, मेंटरशिप, कोचिंग की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे उनको 6 महीने के लिए। आजकल तो सभी यूट्यूब चैनल बनाना शुरू हो गए और मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड करना शुरू हो गए, क्योंकि मालूम ये है कि थोड़े से पैसे आते हैं। क्या हर एक को यूट्यूबर बन जाना चाहिए? नहीं, देखें, ये आपकी बात ठीक है कि ये भी एक तरीक़ाकार है ऑनलाइन जो है पैसे कमाने का, और इसमें आपके पास जो स्किल सेट होना चाहिए कंटेंट क्रिएशन से, कंटेंट क्यूरेशन और वीडियो एडिटिंग, ये सारी आपके पास स्किल्स इस तरह की होनी चाहिए। उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप यूट्यूब पे जो है उस तरीके से वीडियोस बना के अपलोड कर सकते हैं। लेकिन देखें, जितने ज़्यादा लोग भी यूट्यूब पे आते हैं सबको उस तरह पजीराई नहीं मिलती, क्योंकि देखें, एक तो आपके कंटेंट की क्वालिटी, दूसरा ये है कि कंटेंट है किस चीज़ के बारे में, क्या वो कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को एड्रेस करता है या कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, या काफ़ी उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स हैं कि नहीं। आपने चैनल तो सेटअप कर दिया, लेकिन अगर उसकी व्यूअरशिप जो है वो एक ख़ास नंबर से ऊपर नहीं जाती तो आप उससे कोई इतने, अगर आपका इरादा है कि आप उससे पैसे कमाएं, उसको मोनेटाइज़ करें, तो आप इतना नहीं कमा सकते। तो आपको ये मुख्तलिफ स्किल्स चाहिए होती हैं, तो इसके लिए हमारे प्रोग्राम्स हैं। तो चाहे फिर डिजिटल मार्केटिंग, अगर कोई हमारा प्रोग्राम कोई उससे बेनिफिट लेता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब चैनल, और भी काफ़ी डिजिटल चैनल्स हैं। तो यूनिवर्सिटियों में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, कितना स्कोप है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए? बहुत स्कोप है आजकल, लेकिन वो फिर इवेंचुअली इस पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देखें आजकल का ज़माना जो है, सिर्फ यूनिवर्सिटी में क्लासरूम नॉलेज से आप अपने आप को शायद इतना कम्पिटिटिव ना बना सकें कि आपको जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। आपको ख़ुद भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आजकल तो एडवांटेज ये है कि इंटरनेट पे आप जो भी चीज़ स्कूल में सीख रहे हैं या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, आपके पास इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है कि आप उसमें और भी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आपके पास इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो ऑनलाइन मुख्तलिफ रिसोर्सेज से और भी अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकता है। ट्यूटोरियल्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे उनके पास वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं कि उनको काफ़ी अपनी वो स्किल डेवलपमेंट में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो जो भी लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हों या कंप्यूटर साइंस में या आईटी में या जनरली कंप्यूटर साइंस में जो भी वो स्पेशलाइजेशन लेते हैं, तो अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं और अपनी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं तो इसके बड़े अच्छे चांसेस हैं कि उनको फिर कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हमारे लिए ये बड़ा अच्छा मौका है कि आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो नौजवानों को हम क्या बताएं कि अगर वो कंप्यूटर की दुनिया में थोड़ा सा भी सीख जाते हैं तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। आने वाले दिनों में रशिया के इकनॉमिक जोन में कितने बेशुमार कारखाने लगेंगे। फिर अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, अगर वो बेहतर हो जाती है तो हमारा ट्रेड का बिज़नेस जो बड़ा कामयाब हो जाएगा। तो इसमें भी तो जॉब्स मिलेंगी आईटी के लोगों को। बिल्कुल, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जो अगर वो ग्रो करता है तो मुख्तलिफ सिर्फ आईटी नहीं और भी काफ़ी शोबों में जो है रोज़गार के मौके उसमें पैदा होंगे। और उसके अलावा जो हमारी डिजिटल इकॉनमी, जिसकी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, डिजिटल इकॉनमी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये इतनी बड़ी मार्केट है। आजकल देखें, मुख्तलिफ कंपनियाँ जो हैं उनको अक्सर शॉर्टेज ऑफ स्किल्स का सामना करना पड़ता है। वो अगर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उनको शायद, और उनकी एक डेडलाइन है, तो उनको शायद इमीडिएटली मार्केट में लोग ना मिलें। तो वो क्या करते हैं कि काफ़ी कंपनियां इस तरह करती हैं कि जो कुछ इस तरह छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको वो आउटसोर्स कर देती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। दुनिया में कहीं भी अगर आप रहते हैं और आपके पास इंटरनेट एक्सेस है और आपके पास स्किल है तो आप इन प्रोजेक्ट्स पे बिड करके वो ले सकते हैं। तो वो चूँकि डॉलर्स में यूजुअली पेमेंट करते हैं, अगर छोटा मोटा प्रोजेक्ट आप $5,000-6,000 का एक प्रोजेक्ट भी कर लेते हैं महीने में तो अच्छी ठीक ठाक आपकी कमाई हो सकती है। इस तरह से ज़्यादा भी वैल्यू के प्रोजेक्ट्स आते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका एक प्रोफाइल बिल्ड होता है और आपको अगर फीडबैक अच्छी मिलती है, आप अच्छा काम करते हैं तो आपका प्रोफाइल बिल्ड होता है और फिर आपको बाकी प्रोजेक्ट्स मिलने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि आपका एक पूरा प्रोफाइल बिल्ड हो रहा होता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो डिजिटल इकॉनमी में बहुत हैं, लेकिन हमारे जो नौजवान लोग हैं उनको सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि वो अगर कंप्यूटर साइंस, आईटी या इससे रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं उसमें जो भी इनकी
स्पेशलिटी है, या इसके अलावा भी अगर वो किसी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फ़ाइन आर्ट्स का स्टूडेंट है, वो भी IT के मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करके अगर वो ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता है, बहुत ठीक ठाक उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं डिजिटल इकोनॉमी में। तो सिर्फ ये है कि आजकल सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ क्लासरूम से बाहर ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर बहुत ऐसे अच्छी रिसोर्सेज हैं कि जहाँ से वो अपनी स्किल डेवलपमेंट ख़ुद भी कर सकते हैं, और इस तरह IT बोर्ड भी हमारी भी काफ़ी स्कीम्स हैं कि जिससे स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो आपसे हमारे नौजवान कैसे रब्ता करें? क्या उनको अखबारात में इश्तिहार देखने चाहिए, नेट पे देखना चाहिए, आपकी जो वेबसाइट है उसको विज़िट करना चाहिए ताकि उनको भी मालूम पड़े? जी, अगर हमारी कोई स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम होती है तो हम जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उसमें भी एडवर्टाइज़ करते हैं, और हमारी वेबसाइट जो है उस पर भी हम उसको एडवर्टाइज़ करते हैं, और हमारे सोशल मीडिया चैनल्स भी हैं, फेसबुक के ऊपर भी हम हैं, ट्विटर के ऊपर भी हैं, लिंक्डइन के ऊपर भी हैं, तो वहाँ पे भी हम अपडेट्स देते रहते हैं। तो गोया आज हमें ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में हमें, अगर हम IT की तरफ नहीं गए और हमें IT में अबूर हासिल नहीं किया, तो शायद रोज़गार हमें बहुत सी जगहों पे न मिले, तो कम से कम डिजिटल मीडिया पे भी नहीं मिलेगा। और अगर हम कामयाब होते हैं तो हमारे नौजवानों को बड़ी आसानी के साथ रोज़गार मिलेगा और वो अपने घर का चूल्हा जो है वो जला सकेंगे। बिल्कुल, आप ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने कसौटी डिजिटल को टाइम दिया और बड़ी मुफीद बातें की। हमें उम्मीद है कि नौजवान IT की जानिब आएंगे, सीखेंगे और फिर अपने मुल्क को कौम के लिए भी बेहतरी का सामान पैदा करेंगे। बहुत शुक्रिया।